अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाना है. So question number 4 in your question number 3. So there are 6 sub questions. In that your fourth question is 6x minus 4y is equal to minus 12. And your second equation, 8x minus 3y is equal to minus 2. 8x minus 3y is equal to minus 2. Same way, you remember all these 4 steps. First, we have to compare, these equations. You will get the 6 values. After that, we have to find out the value of d, dx and dy. Then you will get the value of x and y using Cramer's rule, that is dx upon d and y is equal to dy upon d. Then you will have to write solution. So the same way we are going to do the fourth sum. First we will compare the first equation, 6x minus 4y is equal to minus 12. एक बार पहले चेक कर लेना कि दोनों वेरिएबल लेफ्ट साइड पे हो और कांस्टेंट राइट साइड पे. इक्वल टू के राइट साइड पे कांस्टेंट होना चाहिए. ओके, सो x और y ये दोनों लेफ्ट साइड और कांस्टेंट आपके राइट साइड पे. सो आपको वैल्यू मिल जाएगी ऑन कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y is equal to c1. So हमें a1 की वैल्यू क्या मिली? a1 is 6, b1 is minus 4. Please remember negative sign. Generally students make here mistake. And c1 is equal to minus 12. Okay. Now for the next, 8x minus 3y is equal to minus 2 on comparing with this is your second equation, a2x plus b2y is equal to c2. अब मैं इसमें कंपेयर करना है. Therefore, a2 की वैल्यू 8, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -2. सो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. 6 वैल्यूज. अभी हमें आगे बढ़ना है d की ओर. सो d के लिए a1, a2, b1, b2. What is the value of a1? a1 की वैल्यू है 6, a2 की वैल्यू है 8, b1 की वैल्यू है -4 और b2 की वैल्यू है -3. So 6 into -3 minus -4 into 8. So 6 into -3 minus -4 into 8. 6 3s are 18, but with sign negative. 4 8s are 32, but negative. And now -18 plus 32. So you got the value minus plus. Now we have to see here minus plus minus sign of the greater number. So 32 में से हमें 18 को माइनस करना है और हमें कौन सी साइन देनी है? बिगर नंबर की, मतलब 32 की. सो 32 और 18 में बिगर नंबर कौन सा है? 32. सो हम क्या साइन देंगे? पॉजिटिव. सो 32 में से हमें 18 माइनस करना है. 12 minus 8 4 and 2 minus 1 is 1, but it remains positive. So
32 minus 18 is plus 14. Now we will move towards dx. So dx के लिए हमें a1 a2 को हाइड करके क्या लिखना है, c1 c2 और फिर यहाँ पे आएगा b1 b2. ओके, सो अभी हमारे c1 की वैल्यू क्या है, -12, c2 की वैल्यू है -2, b1 की वैल्यू यहां से भी हम लोग ले सकते हैं -4 -3 cos -12 into -3, then -4 into -2. All four values are negative, so be careful, there are many negative signs here. -12 minus 3 becomes 36, but minus minus plus. Now here this minus sign, now 4 2s are 8, again minus minus plus, so 36. Now no need of bracket because this is positive only, so 36 minus 8, this minus sign is here, and 4 2s are 8. Now 36 minus 8 we have to do, so 16 minus 8 is 8, and here we are getting 2, so 3 minus, okay, so 3 becomes 2, so 28 remains. Now we have to find out the value of dy. dy की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, a1 a2 एज इट इज लेना है, और b1 b2 की जगह पे हमें क्या लेना है, c1 c2. a1 a2, the value of a1 a2 is 6 8, and the value of c1 c2 is -12 -2. So across 6 into -2 -12 into 8. Six into -2 is -12, -12 is 96. So 12 eggs are 96, but this negative sign, so -96. And now these two negative sign makes positive, so -12 plus 96. Now once again minus plus minus sign of the greater number. So 6 minus 2 is 4, 6 minus 2 is 4, and 9 minus 1 is 8. So we got the 96 minus 12 as 84. So हमने हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया है. अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, थर्ड स्टेप पे. सो थर्ड स्टेप के पहले ऑलवेज ध्यान में रखना बाय क्रैमर्स रूल, ये आपको कंपल्सरीली लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स जाएंगे. बी केयरफुल. सो x इज इक्वल टू dx अपॉन d. सो dx की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली है, 28, और d की वैल्यू 14. सो मैं dx की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा 28 और d की वैल्यू है 14. सो 14 1s are 14 2s are, सो x की वैल्यू है 2. अभी हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y के लिए हमने क्या लिखना है, dy अपॉन d. सो dy, what is the value of dy, 84, and what is the value of d, 14. So 14 1s are 14 and 14 6s are 84. Please remember, for this you need the help of table. So कम से कम आपको एटलीस्ट 20 तक तो टेबल आने चाहिए. कम से कम 20 तक अगर आपके टेबल्स हो गए अच्छे, तो आपको ज्योमेट्री के लिए अगर आप 22 तक के टेबल कर लेते हो, बिकॉज पाई की वैल्यू वहां पे आती है 22/7, तो वो हमें जरूरत पड़ती है. सो कम से कम आपको 22 तक के टेबल अच्छे से आने चाहिए. सो इस दौरान आप टेबल्स अच्छे से कर सकते हो. सो अभी हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 2, y की वैल्यू मिली है 6. अभी हमें यहाँ पे फोर्थ स्टेप पे जाना है. सॉल्यूशन इज x y 2, x की वैल्यू क्या मिली है 2,
और y की वैल्यू 6। सो अपना फाइनल आंसर आ चुका है फोर्थ सम का। सो फोर्थ सम आपका 6x minus 4y minus 12 एंड योर सेकंड इक्वेशन इज 8x minus 3y is equal to -2। इसका आंसर हमें मिला है 2 and 6। One more thing I want to say here कि अगर वही आप अगर समझो पहली मेथड से जो कि हमारी इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स थी कि जैसे हम लोग दोनों कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके x के या तो y के ओके हमने जो फाइंड आउट किया था x का वैल्यू और y का वैल्यू वही सेम वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। मतलब आप कोई भी मेथड यूज करो ओके फर्स्ट मेथड यूज करो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, दूसरी मेथड यूज करो ग्राफिकल मेथड और ये क्रैमर्स रूल, तीनों में आंसर आपको सेम ही मिलेगा। सो यहाँ पे ये डिफरेंट मेथड आपको सिखाई जा रही है। सो अभी हम लोग मूव करते हैं फोर्थ सम हुआ हमारा फिफ्थ सम की ओर। ध्यान में रखना ये 3 वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। d की वैल्यू क्या है a1 a2 b1 b2 और dx की वैल्यू c1 c2 b1 b2, dy की वैल्यू a1 a2 एंड c1 c2। So we are moving towards fifth sum. Our fifth sum is 4n plus 6n. Please remember यहाँ पे variables बदल रहे हैं। So fifth sum is 4n plus 6n is equal to 54. And your second equation is 3n plus 2n is equal to 28. 3n plus 2n is equal to 28. So यहाँ पे जब आपके वेरिएबल्स बदल गए तो हम लोग भी यहाँ पे लिटिल बिट चेंज करेंगे इक्वेशंस में। मैं जहाँ पे a1x बोल रहा था वहां पे मैं क्या बोलूंगा a1m और b1y बोल रहा था वहां पे मैं क्या बोलूंगा b1n। ओके सो यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा सा करेक्शन करके आपको दे देता हूँ ताकि आपको इजी वे समझ में आ जाए क्योंकि ये फिफ्थ सम की रिक्वायरमेंट है। ओके और यहाँ पे मैंने m और n कन्वर्ट किया, ठीक है। सो मेथड वही है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुए हैं। सो ध्यान में रखना बाकी सब कुछ एज इट इज ही रहेगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। सिर्फ हमें वैल्यूज कौन सी मिलेगी, यहाँ पे जो 6 वैल्यू थी वही हमारी रहेगी a1 b1 c1 a2 b2 c2। वैसे ही आप लोग वो 6 वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, उसके बाद d dx और dy, फिर हमें क्रैमर्स रूल लिख के ये दोनों वैल्यूज निकालनी है x और y। वैसे यहाँ पे क्या होगा m और n, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा m और n, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगा m is equal to dm upon d और n is equal to dn upon d और हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा m और n के फॉर्म में। सो हमें m is equal to dm upon d, n is equal to dn upon d। ओके सो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा x और y में नहीं होगा, उसके बदले किस में होगा m और n में। plus 6n is equal to 54। हमें क्या लिखना है अभी, सेम स्टेप्स बट लिटिल बिट डिफरेंस। x और y की जगह पे m और n। ऑन कंपेयरिंग विथ यू कैन सी दैट a1 m plus b1 n is equal to c1। सो हमें a1 की वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है 4, b1 की वैल्यू क्या मिल रही है 6 और C1 की वैल्यू 54। सो हमने एक इक्वेशन के लिए तीनों वैल्यूज निकाल दी। हमने किसके वैल्यू निकाली, तो A1 B1 C1। अभी हमें सेकेंड इक्वेशन पे
जाना है। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3n plus 2n is equal to 28. Same way on comparing with, क्या करेंगे हम लोग, a1 की जगह पे a2m plus b2n is equal to c2. So a2m मैंने वहां पे भी लिख दिया है, a2m plus b2n is equal to c2. So we will get the value of a2 is equal to 3, b2 is equal to 2, c2 is equal to 28. ये हमें 6 वैल्यूज मिल गई, हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। ओके, अभी हमें सेकेंड स्टेप पे जाना है। सेकेंड स्टेप पे हमें क्या करना है, 3 वैल्यूज हमें निकालनी है, d, dm एंड dn। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है d, dm और dn। सो मैं यहाँ पे भी चेंज कर दूं, dm एंड dn, ठीक है। सो तीनों वैल्यूज हमें अभी निकालनी है। यहाँ पे सेम में रहेगा a1, a2, b1, b2। a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 2। क्रॉस 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 2 जा 8 माइनस 18 minus 10. So please remember, minus plus minus, sign of the greater number. So 8 minus 18, so we are getting minus 10. So once again I'll explain you, 4 into 2 minus 6 into 3. So 4 2 are 8 minus 18, और 8 minus 18 हमें क्या मिलेगा, minus 10. Minus plus minus, sign of the greater number. This is our greater number. So please remember, and this is positive 8, this is negative 8, 18. So plus 8 minus 18 is minus 10. Now we have to find out the value of dm. So dm के लिए हमें क्या लिखना है, हम इसे हाइड करेंगे। जो m से हमें मिले हुए थी वैल्यूज a1 और a2, m वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज मिली थी उसे हम लोग हाइड करेंगे जब हमें dm फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, उसके जगह पे c1 और c2, और ये सेम रहेगा b1 और b2। सो c1 की हमारी वैल्यू क्या है, 54, और c2 की वैल्यू 28। b1 हमारे लिए यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, 6 और 2। ओके, सो दिस सेम वैल्यू आई एम टेकिंग हियर। नाउ द क्रॉस 54 into 2 minus 6 into 28. 2 4s are 8, 2 5s are 10, 54 2s are 108. Now 6 8s are 48, 4 remains, 6 2s are 12 plus 4 16. We are getting 168. Once again I just want to show you that 28 6 are 6 8s are 48, 6 2s are 12 plus 4 16, but this minus sign here, so minus 168. And now 8 minus 8 से minus plus minus, so 8 minus 8 0, 6 minus 0 6, and okay, 1 minus 1 is 0, but sign of the greater number, so minus plus minus, sign of the greater number. So minus 168 and plus 108. So 108 minus 168 becomes minus 60. Now we have to find out dn. dn we will get from here a1, a2, and here I will take c1, c2. ध्यान में रखना, जब हमें dn फाइंड आउट करना है तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, c1 c2 कांस्टेंट। सो n इज योर सेकंड, सो उसे हमें हटा के वहां पे हमें क्या लिखना है, c1 c2। सो a1 क्या होगा हमारा,
A1 की वैल्यू है हमारी 4, A2 की वैल्यू 4 एंड 3, यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू मिल चुकी है, A1 is 4, A2 is 3, C1 यहाँ पे हमें मिल रहा है, C1 is 54 and C2 is 28. So cross multiply 4 into 28 minus 54 into 3. So once again we have to multiply. 4 8s are 32. 3 remains. 4 2s are 8. 8 plus 3 11. Now 3 4s are 12. 1 remains. 3 5s are 15 plus 1 16. Okay, so just I want to show you 28 4s are 4 8s are 32. 4 2s are 8 plus 3 11. We got here 112. And 54 into 3, I want to show you that also. 3 4s are 12. 1 remains. 3 5s are 15 plus 1 16. I got this value 162. So अभी हमें यहाँ पे once again माइनस करना है. Okay, minus plus minus, sign of the greater number. So 2 minus 2 0, 6 minus 1 5. So 1 minus 1 0. We are not writing that. So 162 minus 112 is 50. But minus plus minus, sign of the greater number. This one is your greater number. So please here we will get minus 50. So we completed the second step. अभी हमें कहाँ पे जाना है? थर्ड स्टेप पे. थर्ड स्टेप के पहले मैंने ऑलवेज आपको बोला है लिखना भूलना नहीं. बाय क्रैमर्स रूल. सो हमें m की वैल्यू कैसे मिलेगी है? तो dm अपॉन d. हमारे लिए dm की वैल्यू क्या है? -60 और d की वैल्यू -10. सी ध्यान से देख लो, dm की वैल्यू -60 जो मैंने यहाँ पे लिखी है और d की वैल्यू -10 which I have written here जो मैंने यहाँ पे लिखी है. अब यहाँ पे 2 बार माइनस आ रहा मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव रहेगा और 10 1s are 10 6s are. Your answer is m is equal to 6. n की वैल्यू अभी हमें निकालनी है dn अपॉन d. dn हमें क्या मिला? -50 और d की वैल्यू -10. वंस अगेन माइनस माइनस प्लस. सो आंसर क्या रहेगा हमारा? पॉजिटिव. लेकिन 10 1s are और 10 5s are. सो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव 5. माइनस माइनस प्लस. 10 1s are 10 5s are 50. सो वी गॉट द फाइनल आंसर एज 5. सो सॉल्यूशन हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका. हम लोग फोर्थ स्टेप पे आ गए हैं. सॉल्यूशन इज m n. Please remember m and n, not an x or y. Okay, so m n is equal to 6 5. So value of m is 6, n is 5. So हमने यहाँ पे फिफ्थ सम कंप्लीट कर लिया है. फिफ्थ सम में वंस अगेन ओके. सो एक हमने पहले ज़्यादा ध्यान में रखना, इक्वेशन में हमें लिखने वक्त x और y नहीं है तो a1n plus b1n is equal to c1 और यहाँ पे हमें लिखना a2n plus b2n is equal to c2. सो आपको 6 वैल्यूज मिल जाएगी. जब 6 वैल्यू मिल गई तो हमें क्या निकालना है? d के लिए a1 a2 b1 b2 dm. प्लीज रिमेंबर नॉट a dx but dm और dn. ओके, सो dy की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? dn. लेकिन बाकी सब स्टेप्स वैसे ही रहेंगे, सिर्फ वेरिएबल का नाम बदला है. x और y की जगह पे m और n दिया है तो फाइनल आंसर m और n में रहेगा. बस इतना ही आपको चेंज करना है. सो यहाँ पे हमने जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 वैल्यू निकाली, d की वैल्यू -10, dm की वैल्यू -60 और dn की वैल्यू -50, वो यहाँ पे हमने अप्लाई की. 10 1s are and 10 6s are. 6 मिला, दोनों नेगेटिव है इसलिए फाइनल आंसर पॉजिटिव रहेगा. और n की वैल्यू भी हमें दोनों नेगेटिव वैल्यू मिल रही है. सो dn -50 और dm -10 दोनों नेगेटिव है, सो पॉजिटिव आंसर मिलेगा. और 10 1s are 10 5, सो 5. सो फाइनल आंसर इज m is equal to 6, n is equal to 5. Now we are moving towards sixth sum. Okay, so sixth sum की ओर बढ़ते हैं.
स्टेप्स याद रखोगे तो एकदम इजी हो जाएगा। जितना स्टेप्स को याद रखने की कोशिश करोगे उतने आसानी से आप आगे बढ़ सकोगे। So I'm moving towards the sixth sum. Sixth sum है 2x plus 3y is equal to 2. पहली इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 2, your sixth sum, and x minus y upon 2 is equal to 1 upon 2. X minus y upon 2 is equal to 1 upon 2. This equation you find it a bit different. So we have to convert in normal manner. Okay, so first of all we will try to remove that. हमें यहाँ पे कोशिश यही रहेगी कि हम लोग डिनोमिनेटर से 2 को हटा दें। So यहाँ पे पहले हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 2x plus 3y is equal to 2. अभी हमें वापस वहाँ पे बदलना पड़ेगा। n की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? x, n की जगह पे y। ओके, सो वापस हमें x और y पे कन्वर्ट करना। ओके, सब कुछ वैसे ही रहेगा जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सब में था। ओके, फिफ्थ सब में हमारा m और n था, सिक्स सब में हम लोग x और y ले रहे हैं। ओके, सो कोएफिशिएंट्स उन्होंने हमें x और y दिए, हम वैसे ही करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y is equal to c1. We got the value of a1 as 2, b1 as 3, c1 as 2. So हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी है। a1 की वैल्यू क्या मिली? 2, b1 की वैल्यू क्या मिली? 3, c1 की वैल्यू क्या मिली? 2. नाउ सेकेंड इक्वेशन थोड़ा सा टफ है, जो कि ट्रिकी है, हमें उसे सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, और हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करना कैसे है? अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में अगर आपने फिफ्थ सम के आगे जो सिक्स सम था उसमें इसी टाइप के सम्स थे, जहां पे हमें डिनोमिनेटर में 2 मिला था, मींस कोई वैल्यू थी, जैसे यहाँ पे 2 है वैसे वहां पे वैल्यू थी, तो हमने क्या किया था, उसी नंबर से हमें उस हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया था। सो सेम वे वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2। सो यहां पे हमने क्या किया, x इंटू 2 माइनस वाई अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2। सो ये हमें 2x 2 यहाँ पे कैंसिल, क्या बचा माइनस y, और यहाँ से भी 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 हो गया। नॉर्मल इक्वेशन जैसे ये था वैसा ये भी हो गया। ओके, सो ऐसे जब भी इक्वेशन आए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो नंबर आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है वही नंबर से आप हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। सो ईच टर्म यू मल्टीप्लाई बाय 2। वाई बाय 2? बिकॉज डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और जब दो बार में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिनोमिनेटर से हट जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके रह जाएगा। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अभी हमें वैसे ही इस पे जैसा करना है, इक्वेशन नॉर्मल हो चुकी है। ऑन कंपेयरिंग विथ a2x plus b2y is equal to c2। सो हमारी वैल्यूज a2 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली 2। प्लीज अभी ये इक्वेशन को आप भूल जाएंगे, इसको याद रखेंगे वैल्यूज के लिए। सो a2 की वैल्यू क्या मिली 2, b2 की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो क्या एज्यूम करेंगे 1, और ये माइनस को भूलना नहीं।
सो B2 की वैल्यू क्या मिली -1 और C2 की वैल्यू मिली 1। सो हमारे लिए ऑल 6 वैल्यूज रेडी हो चुकी है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। वी गॉट ऑल दीज 6 वैल्यूज। नाउ वी हैव टू मूव टू फाइंड आउट D। D के लिए हमें क्या करना है? A1, A2, B1, B2। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू -1। So please remember A1 is 2, then A2 is 2, B1 is 3 and B2 is -1. So 2 into -1, 3 into 2. So 2 into -1 is -2 and 3 2s are 6, but -6, -2 -6 is -8. Minus minus plus sign of the greater number. So -2 -6 is -8. Now dx। dx के लिए हमें क्या करना है? A1 A2 को हाइड करके C1 C2 और B1 B2 एज इट इज रहेगा। ओके, सो C1 हमारे लिए C1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया 2 और C2 की वैल्यू 1। फिर हमें B1 B2 का वैल्यू यहाँ से इजीली मिल रहा है, बट यू कैन जस्ट वेरीफाई 3 एंड -1। B1 की वैल्यू क्या है? 3 और B2 की वैल्यू -1, वही जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। सेम वे वही वैल्यूज ले रहा हूँ। सो 2 into -1 -3 into 1। सो आई गॉट दिस। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखना है। मैंने आपको बोला था हिंदी का 4 आप याद रखोगे। कैसे करोगे? ये आपके लिए क्या बन रही है? माइनस साइन। मतलब आप कैसे करोगे? यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप माइनस साइन दोगे और फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सो यहाँ से ये, फिर माइनस साइन और फिर ऐसे आना है आपको। एरो मैंने इसलिए आपको दिया है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। 2 into -1 is -2 and -3 1s are 3। so -2 -3 क्या होगा? -5। सो हमें d की वैल्यू -8 मिली है, dx की वैल्यू -5। अभी हमें dy की वैल्यू की ओर बढ़ना है। सो dy के लिए हमें क्या करना है? हम इसे हाइड करेंगे इनमें से, मतलब ये तो रहेगा ही A1 A2, लेकिन B1 B2 की जगह पे क्या आएगा? C1 C2। सो प्लीज स्टूडेंट्स रिमेंबर, D की वैल्यू निकालने के लिए A1 A2 B1 B2, लेकिन dx की वैल्यू निकालने के लिए A1 A2 को हटा के हमें क्या लिखना है? C1 C2। और वही dy के लिए हमें क्या करना है? A1 A2 रखना है, लेकिन B1 B2 को हटा के C1 C2 लेना है। सो ये 3 वैल्यूज प्लीज याद रखना। ओके, A1 हमारे लिए यहाँ से वैल्यूज मिल रही है 2, A2 is 2, your C1 and C2 you will get from here 2 and 1, 2 1s are 2, okay, so 2 into 1 minus 2 into 2, so 2 1s are 2 minus 2 2s are 4, so -2। now we are moving towards थर्ड स्टेप। हमें ये तीनों वैल्यूज निकालनी है। ओके, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, पहले आपको क्या याद रखना है? बाय क्रैमर्स रूल। और मैं अभी इसकी वैल्यू, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? x इज इक्वल टू dx अपॉन d। सो dx की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। क्या मिली है? -5 और d की वैल्यू -8। वापस एक बार दोनों वैल्यूज नेगेटिव है तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव। सो योर फाइनल आंसर इज 5/8 फॉर द वैल्यू x। अभी हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन d। dy की वैल्यू हमें क्या मिली है? -2 और d की वैल्यू मिली है -8। ओके, सो दोनों नेगेटिव है तो फाइनल आंसर रहेगा पॉजिटिव।
लेकिन अगर कैंसिलेशन पॉसिबल हो तो आपको करना है। सो 2 1 जा 2 4 जा, सो हमें आंसर मिल रहा है 1/4। सो x की वैल्यू क्या मिली है 5/8, y की वैल्यू मिली है 1/4। थर्ड स्टेप कंप्लीट किया। फोर्थ स्टेप सॉल्यूशन की ओर। सो प्लीज सॉल्यूशन ध्यान में रहे सारे स्टूडेंट्स, ऑलवेज सॉल्यूशन लिखना भूलना नहीं है, इसलिए मैंने उसे एक अलग से स्टेप बना के रखा है। मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्यूशन लिखते नहीं है, भूल जाते हैं और उसी में उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। सो ये गलती ना करना, और ये गलती आप ना करो इसके लिए मैंने उसे स्टेप्स में डाल दिया है। सो सॉल्यूशन इज x y 5/8 and 1/4। सो हमने एक्सरसाइज के ऑल सम्स क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सब क्वेश्चंस कंप्लीट किए। योर प्रैक्टिस सेट 1.3 is finished with this sum.